Assalamu alaikum everyone. This is Asif Kamal, your English teacher. I hope all of you are blessed at home. As you know, we are dealing with the exercise of our first chapter. So in our previous lecture, we discussed about few concepts. But unfortunately, I got a lot of feedback regarding that you didn't get the concept at all. कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया. So first of all, there is no need to be worry about कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आज के हम लेक्चर में चीज़ों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे, उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिपीट करेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो आप लोग पिक नहीं कर सके उनको दोबारा से हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. So let's start our today's lecture. All of you are supposed to keep your books with you. Look at the question answer session. Answer the following questions briefly. Who or what are the following? Brobdingnag, as I told you at the very outset of our previous lecture or in our first lecture, that it was an imaginary land that was imagined by the author, Jonathan Swift, who wrote this book, Gulliver Travel. And then, second question, Glumdalclitch. She was a little fellow. She was 9 years old. She was very skillful in dressing her doll. She was the daughter of Gulliver's mistress. And then, the sign of the Green Eagle. It was an inn where Gulliver performed different tricks. This place was situated in the town where Gulliver was carried to perform his some tricks to amuse people. And then Grildrig, it was a name that was given to Gulliver by the family, and later the whole kingdom became familiar with the name. The word means what the English call mannequin. So these are the first four questions. And then fifth one, Splachnik. It was an animal in that country which was about 6 feet long. So as you were confused about these questions, I think now it is crystal clear to all of you what are these and what the author is trying to ask. Now come to the second part, B. Here is a summary of an extract from Gulliver's Travels, completed by filling in the blanks. तो ये एक्सट्रैक्ट उसने हमें दिया है, कुछ वर्ड्स मिसिंग है इसके, तो हमने इसको रीड आउट करके क्या करना है, यहाँ पर वो जो मिसिंग वर्ड्स हैं, जो मिसिंग फ्रेजेस हैं, उनको हमने यहाँ पुट करना है और इसको कंप्लीट करना है. सो चलिए रीड आउट करते हैं इसको. Gulliver was taken care of in the farmer's house by his 9 years old daughter, who arranged for doll's cradle as a bed for him, and also taught him the language that they used to talk. As word spread that, और जैसे जैसे ही वो इनके वो अल्फाज जो थे इनके इसके बारे में जो लोगों को पता चलता गया, पीपल बिकेम फिल इन द ब्लैंक. अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको आगे फिल आउट करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ. वही फर्स्ट टू तो मैंने आप लोगों के लिए डन कर दी, मैंने खुद से कर दी. आगे मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर. पीपल बिकेम क्यूरियस एंड फ्रेंड सजेस्टेड टू द फार्मर दैट. लोग बड़े मुतजस्सिस हो गए इसके बारे में, और इसका जो मास्टर था उसको उसके दोस्त ने ये तजवीज़ दी. कौन सी तजवीज़, ये आप लोग पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी. Accordingly, the farmer took him to the sign of the Green Eagle
एंड हायर्ड, किसको हायर किया था उसने वहाँ पर, ठीक है। टू, किसके लिए, क्यों उसने उसको हायर किया था। वाइल गुलिवर्स परफॉर्मेंस थ्रिल्ड द क्राउड दैट केम टू सी हिम, ही हिमसेल्फ, तो वो खुद मीन के जब जैसे ही परफॉर्मेंस देखी लोगों ने, वो लोग बड़े पुरजोश हो गए, और वो बजाते खुद क्या हुआ, मीन के उस वो कैसा फील कर रहा है। तो ये एक्सट्रैक्ट बिल्कुल सिंपल सा है, हम लोग पहले अपने लेक्चर्स में इसको पढ़ चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बिल्कुल इजी सही है, कुछ वर्ड्स कुछ फ्रेजेस मिसिंग है इसके अंदर, आपने वो ऐड करनी है यहाँ पर। जैसे कि फर्स्ट टू मैंने आपके लिए डन मीन के ऑलरेडी करके दे दिए आपको कि इस तरह के ये जो वर्ड्स यहाँ पर मिसिंग है हमने फिल आउट करने हैं। अब नीचे सी पार्ट को देखें, देयर आर सेवरल रेफरेंसेस टू द साइज ऑफ ब्रॉबडिग्नेनियंस। तो ये ब्रॉबडिग्नेनियंस के बारे में, इनको उस जगह के बारे में, उस जगह के लोगों के बारे में कुछ रेफरेंसेस दी गई हैं, एंड द थिंग्स दे यूज़, और वो किस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। सम ऑफ देम आर डायरेक्ट एज दे आर फॉलोइंग इन द रेफरेंस, और कुछ डायरेक्ट रेफरेंस तो हमें दे दी गई, इनके सीधी सीधी हमें समझ आ जाएंगी कैसे। ग्लोमटालक्लिच वाज 40 फीट टॉल, तो ये हमें देखें, ये उस ब्रॉबडिग्नेंग जो एरिया जो जगह है उसके बारे में हमें बता रहा है कि वो किस कदर इनके बड़े, वहाँ पर लोग इतने बड़े हैं, वहाँ पर चीज़ें किस तरह की है। तो हमें बता रहे हैं कि वो जो लड़की थी छोटी 9 ईयर्स की, तो वो कितने 40 फीट टॉल, 40 फीट की है वो। फिर द हॉर्स वेंट अबाउट 40 फीट एट एवरी स्टेप, हता कि घोड़ा भी जो वहाँ पर यूज़ होता है मीन के उनके लिए गाड़ी के लिए, घोड़ा गाड़ी के लिए इस्तेमाल होता था सफ़र के लिए, तो वो भी अगर एक कदम अपना उठाता था दूसरा कदम रखने के लिए वो 40 फीट का फासला तय करता था। तो ये देखें कि ये रेफरेंस है उस एरिया की, उस जगह के लोगों की और चीज़ों के साइज़ की। तो यहाँ पर हमें भी कुछ पिक आउट करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट वन तो डन उन्होंने ऑलरेडी कर दिया हमारे लिए, द डॉल्स क्रैडल सर्व्ड एज अ बेड। ये देखें इसके लिए हत्ता के वो जो गुड़िया का झूला था वो इसके बेड के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसी तरह अब हमें कहा गया है कि आप भी फाइंड आउट करें। तो सेकंड वन इज़ डन। मैं एक और आप लोगों के लिए चले कर देता हूँ कि स्प्लैंक जो था, अगर स्प्लैंक की बात की जाए तो ये क्या था, एन एनिमल इन दैट कंट्री विच वाज अबाउट 6 फीट लॉन्ग। तो ये ऐसा छोटा सा ऐसे कीड़ा था, जानवर था कि जो तकरीबन 6 फीट का था। ये सेकंड तो आपकी रेफरेंस ही होगी। अब आपने भी इसी तरह पिक आउट करनी है यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी और रेफरेंसेस दी गई हैं जिनसे आपको ब्रॉबडिग्नेग जो वो जो जगह है, इमेजिनरी लैंड है, उसके साइज़, उसकी वसअत और उसकी इनके उस पर लोग जो थे वो कितने कदावर थे, जो चीज़ें थी बाकी वो किस कदर बड़ी थी, ह्यूज थी। तो उनको ढूंढने के लिए और कौन कौन सी रेफरेंसेस आपको इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, ये जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा उसमें से मिल सकती हैं। तो सिंपली यहाँ पर वो रेफरेंसेस पूछी गई हैं कि वो जो प्लेस है, ठीक है, उसको, उसके साइज़ को, उसकी वसअत को, वहाँ के लोगों को, इनकी चीज़ें वहाँ पर कितनी बड़ी उनको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। देन डी पार्ट देखें, गुलिवर सेज दैट he owes his preservation to his nurse. What sports this observation? वो कहता है कि मेरी जो हिफाजत है, प्रोटेक्शन है, मेरी प्रिजर्वेशन है, मैं जो महफूज, जो मेरा जो तहफ़्फ़ुज़ है वो इस नर्स का, वो इस लड़की का मकरूज़ है या मरहूनमंद है। तो ये कौन सी ऐसी बात है जो उसकी इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट कर रही है। अगर देखा जाए, इफ़ यू टॉक अबाउट इट, doll's cradle was used as a bed for him and it was placed in a drawer to avoid from rats। और फिर और भी एक जगह पर उसके बारे में बताया जाता है कि उसकी केयर कैसे की जाती थी। जब एक वो स्कूल का जो बच्चा होता है वो हेज़लनट इस पर फेंकता है, हेज़लनट, ये उस वहाँ से बच जाता है। और फिर उसके बाद इसको क्या किया जाता है, वो जो लड़की है इसको, इसकी प्रोटेक्शन, उसकी केयर करती है वहाँ पर, और उस बच्चे को भी डांट कर वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो सिंपली आपसे यही कुछ पूछा गया इस क्वेश्चन में भी, डी पार्ट में भी, कि वो ऐसा क्यों कहता है कि मेरी जो हिफाजत है, मेरी जो प्रोटेक्शन है वो किसकी मकरूज़ है, उस
छोटी नर्स की, छोटी लड़की की, और भी बहुत सारी रेफरेंसेस आप कोट कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी यानी कि अगली बात वो हेज़लनट वाली आप ना करना चाहें तो आप पीछे फर्स्ट पेज पर आप बुक में है, वहाँ पे आप जब ये एक्सट्रैक्ट पहला जो हमें पैराग्राफ दिया गया आप इसको रीड आउट करें तो वहाँ से भी हमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारा सब कुछ उसके बारे में मिल, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये भी था, शी यूज्ड टू वॉश हिज क्लॉथ्स एंड शी ऑल्सो टेक केयर ऑफ हिज डाइट, उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी, उसके कपड़े वगैरह वो खुद वॉश करती थी। और उसको उसने क्या किया था, 7 क्लॉथ्स, इवन के 7 शर्ट्स बना कर दी थी। तो ये भी जाहिर करता है कि वो उसकी कितनी केयर करती थी। आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है, देयर इज़ नथिंग कन्फ्यूजन, लाइक कोई कुछ भी आपके लिए कन्फ्यूजन की बात नहीं है। सो होपफुली आप सब इसको खुद भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है देन लेट अस नो, वी आर हियर टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।